welcoming you all back to another session of No Street Current Affairs. The date of the day is 12th of January 2021, and we shall be seeing all the articles which are important and relevant from the exam's perspective. So let us begin this particular session wherein we not only will be understanding the current affairs, but also will try to develop various perspective and dimensions, which is the key requirement and demand of the UPSC examination, which will help you eventually to apply a single current affair across multiple topics. तो आपके पास application approach develop होगी basically from this particular series. So to all the new learners who have got associated with us for the very first time, please allow me to introduce to them few of the benefits of an academy subscription first. If you take an academy subscription, you get unlimited access to all the educators, their courses, and their classes on the academy's platform. You also get live test and doubt clearing sessions at regular intervals जो ensure करते हैं कि आपका कोई भी gray area ना बचे during this preparation of yours of civil services examination, and आपका regular basis पे assessment भी होता है. All the classes on Unacademy are live. This makes sure कि आपको एक real time manner पे opportunity provide हो so as to engage and interact with the faculty. You can easily take an Academy subscription by downloading an Academy's learning app and installing it on your mobile phone. After this, you have two options of subscription, that is plus subscription and iconic subscription. अगर आप plus subscription choose करते हैं, so here you get multiple benefits like live classes, test series, unlimited practice, and so on. And you also get multiple options of the plan ranging from 1 month to 36 months. But the recommended would be annual subscription plan, जो आपको cost करेगा 49,500 rupees पे. And you can avail extra 10% off by applying my code NAMAN NAMAN. The final price then would be reduced to 44,550 rupees. अगर आप iconic choose करते हैं, so it is a bit expensive as it has some additional benefits like personal coach, daily mains, question answer practice, and so on. The annual price would be 69,500. You can avail 10% off by applying my code NAMAN, and the final price then would be reduced to 62,550 rupees. Let us come directly on to the first article of the day, which is very important and was pending for a long time. That is, should India increase the legal age of marriage of women? तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू है जो काफी टाइम से चल रहा है इन द न्यूज. 74th, पहले हम कॉन्टेक्स्ट की अगर बात करें, सो इसका कॉन्टेक्स्ट डिराइव होता है फ्रॉम द 74th इंडिपेंडेंस डे स्पीच ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री, वेयर ही indicated to increase the age of women, legal age of marriage for women from 18 as of now to 21. केशव, यूट्यूब पे मैं पढ़ाऊंगा बट आई एम नॉट श्योर कि मैं क्लास अब कब लूंगा. डिजास्टर मैनेजमेंट को बस मुझे कंक्लूड करने की 2-3 क्लासेस लेनी है. अपार्ट फ्रॉम दैट मैं उस पर लाइव क्लास लूंगा या नहीं, आई एम नॉट वेरी मच श्योर अबाउट दैट. बट यू कैन रिमेन इन कॉन्टैक्ट विथ मी बाय सब्सक्राइबिंग टू प्रेपनेट्स. अगर आप प्रेपनेट्स को सब्सक्राइब करते हैं तो आप मेरे कॉन्टैक्ट में रहेंगे. मैं जहां जिस भी प्लेटफॉर्म में पढ़ाऊंगा, अनअकैडमी, यूट्यूब, अनअकैडमी प्लस और सम अदर प्लेटफॉर्म, यू कैन रिमेन इन टच विथ मी. फाइन. So let us try to understand the context first. So the first context we derive from the 74th Independence Day speech. Later on in the budget session also, Sitharaman, the finance minister of our country, talked about the increasing of the legal age of marriage, and consequently a task force was constituted under the chairmanship of Jaya Jaitley. Now this task force did not have a single mandate of only studying the prospects of increasing the legal age of marriage, but also to link it with the other social benefits of the country, like that of MMR. What is the impact of age of marriage with MMR, IMR, population stabilization, and so on. So this task force has yet not come out with the recommendations, and the recommendations of the same are awaited. Fine. So you need to understand first that what are we trying to achieve out here. As of now in India, थोड़ा सा एक बैकग्राउंड देता हूं मैं आपको कि हमारे देश में right from the colonial times how we have kept the legal age of marriage, or you can also say the sexual consent. What is the age of sexual consent in India right from the colonial times? So when IPC was evolved in 1860, the age of sexual consent for girls was kept at 10 years.
लेटर ऑन 91 में इसको इंक्रीज किया गया टू 12 इयर्स। तो जो भी 12 इयर्स के बिलो गर्ल्स के साथ फिजिकल रिलेशनशिप फॉर्म करता है, दैट वाज बेसिकली penalized. Then the government, the British government in 1929 came up with an important legislative tool called as the Sharda Act. काफी important है ये, prelims में direct question आ सकता है कि Sharda Act is related to which of the following. तो Sharda Act 1929 में लेके आया गया, and here the legal age of marriage was kept 14 years for female and 18 years for male. Then we got the independence, and in 1978 we amended the Sharda Act. Sharda Act को हमने amend कर दिया 1978, and then we increased the legal age of marriage for both male and female to 18 years for female and 21 years for male. ठीक है, इसके बीच में 1940s में भी हमने 14 to 16 इयर्स किया था, लेकिन उतनी डिटेल्स आपको जरूरी नहीं है। मैं सिर्फ आपको एक टाइमलाइन का एक आइडिया दे रहा हूं यहाँ पे, ताकि आपको पता हो दैट फ्रॉम वेयर वी आर ट्रेसिंग दिस लीगल एज ऑफ मैरिज इन इंडिया। Okay, so this amendment of the Sharda Act in 1978 we still are following, and this age, that is 18 and 21, is reflected in many of the other statutes as well, like the Special Marriage Act of 1954, Hindu Marriage Act of 1956. तो जो religious acts हैं उनमें भी same legal age of marriage reflect करती है। Then we came up with the Prohibition of Child Marriage Act, Prohibition of Child Marriage Act in 2006. इसको हम डिटेल में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट आउट हियर। तो यहाँ पे भी चाइल्ड मैरिजेस को डिफाइन करने के लिए एज को डिफाइन करना जरूरी था, एंड हियर वी डिफाइन द एज एज 18 and 21. अगेन वी केम अप विद द पॉक्सो एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस इन 2012. तो इनिशियली पॉक्सो एक्ट में चाइल्ड को डिफाइन किया गया था एनी इंडिविजुअल बिलो 16 इयर्स ऑफ एज, लेकिन लेटर इसको इंक्रीज कर दिया गया टू 18 इयर्स ऑफ एज. मैं अभी आपको एक बैकग्राउंड दे रहा हूं, आपको एक फ्रेमवर्क क्रिएट कर रहा हूं बिफोर डिस्कसिंग ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक. एनालिसिस हम उसके बाद करेंगे, ठीक है. और इसी बीच में एक जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का इन 2017 विच बेसिकली एनहांस्ड the sexual age of consent in India to 18 years. So Supreme Court in 2017 declared that anyone if tries to form a physical relationship with a girl below 18 years of age, then it will be amounted as, or it will be counted as rape. इसको सुप्रीम कोर्ट ने जब डिसीजन दिया, it is then when we rationalized the प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट. बिकॉज चाइल्ड मैरिज एक्ट देखिए क्या कर रहा है, 18 साल की फीमेल को अलाउ कर रहा है कि आप 18 साल ऑनवर्ड से मैरी कर सकते हैं, लेकिन 18 इयर्स तक अगर आपने फिजिकल रिलेशनशिप बनाना अलाउ किया हुआ है, सो इट विल नॉट बी काउंटेड एज रेप. तो ये बहुत ही बड़ा एक लैक्यूना था, पैराडॉक्स था बिटवीन सेवरल ऑफ द स्टैट्यूज इन आवर कंट्री. तो पॉक्सो में भी यही लैक्यूना था, लेकिन उसको अमेंड करके सही कर दिया गया. पीसीएमए को फर्दर इफेक्टिव बनाने के लिए ये जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का बहुत ज्यादा जरूरी था. तो जब से सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया कि 18 ईयर्स से बिलो अगर आप फिजिकल रिलेशनशिप बनाते हैं किसी लड़की के साथ, तो दैट विल बी काउंटेड एज रेप वेदर शी इज योर वाइफ और नॉट. तो यहां से पीसीएमए थोड़ा सा और इफेक्टिव बनना स्टार्ट हो गया. सो दिस इज द रफ फ्रेमवर्क. नाउ प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग. लेट मी draw or simplify the entire issue for you. This is the age of female, this is the age of male, legal age of marriage. Fine. This is the territory of legal marriages. Territory of legal marriages. इसके बाद कोई भी मैरी करता है, 22 साल का लड़का, 23 साल की लड़की, कोई भी मैरी करता है, so that is legal marriage. इसके बिलो कोई भी मैरी करता है, so that is the territory of illegal marriages. Right? Now what are we trying to achieve? We are trying to increase this to 21 years. Increase legal age of marriage for women
to 21 years. Now, why are we doing this? Let us try to understand the benefits. बिकॉज सबसे इजी बेनिफिट्स हैं, लीस्ट कॉम्प्लिकेटेड है, जो कंट्रोवर्सीज हैं, क्रिटिक्स हैं, ओपोनेंट्स हैं, वो थोड़े से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं. तो बेनिफिट्स में वी कैन ईदर डिवाइड द बेनिफिट्स एज इंडिविजुअल बेनिफिट्स एंड नेशनल बेनिफिट्स, और यू कैन डिवाइड द बेनिफिट्स एज सोशल बेनिफिट्स एंड इकोनॉमिक बेनिफिट्स. तो जैसा आपको कंफर्टेबल लगे एग्जामिनेशन में, मैं हमेशा एम्फसाइज करता हूं कि अपने आंसर को आप ऑर्गेनाइज बनाएं. ये जो मैंने आपके सामने डायग्राम बना के एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है, दिस इज it's a part of that organized effort only. तो बेनिफिट को आप डिवाइड कर सकते हैं इंडिविजुअल एंड नेशनल बेनिफिट्स में और सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट्स में. फाइन, तो हम बेनिफिट्स को पहले ट्रेस आउट करते हैं. इट विल प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज टू वुमेन. अगर मैं इंडिविजुअल में बात करूं तो व्हाट काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज? हायर एजुकेशन. More number of women can now avail higher education. Higher education अगर attainment होता है, if the attainment of education among women increases, then the economic independence of women will increase. जो मेजर इश्यूज हमने अभी तक ट्रेस आउट करे हैं, वही हम यहाँ पे दोबारा रिफ्लेक्ट करेंगे. So literacy levels will increase. Because of literacy level, economic independence will be achieved in our country of women. Apart from this, there will be better health of women because now she will be more aware, right? देखिए थोड़ा सा यहाँ पे अंडरस्टैंड करिए that the age group of 15 to 19 years is considered the age group of high nutritional needs. ये एक ऐसी एज है जब आपकी बॉडी को हाई न्यूट्रिशन चाहिए होता है. Now, if you utilize this age for the reproductive purposes, then the nutrients are exhausted from your body, and this leads to the problem of high anemia, child stunting, child malnutrition, and so on. Getting my point? तो इस एज को आपको सिक्योर करना है एंड यहाँ पे आपको हेल्थ को और डेवलप करना है. तो दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव. इसीलिए यहाँ पे इंडिविजुअल वुमेन की हेल्थ इंक्रीज होगी, और सेम जब आप नेशनल बेनिफिट में बात करेंगे तो यहाँ पे आप ओवरऑल न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स मेंशन कर सकते हैं that there would be enhanced nutritional outcomes in India if you increase the legal age of marriage, as there would be less number of anemic women getting conceived, or less number of pregnant anemic women in our country, leading to more healthy deliveries, leading to more healthy childbirths in our country. ठीक है, तो नेशनल में आप ओवरऑल नेशनल न्यूट्रिशनल आउटकम्स की बात करेंगे, और इंडिविजुअल में आप सिर्फ विमेन की हेल्थ की बात करेंगे कि एनीमिया कम होगा विमेन में. ठीक है, एमएमआर कम होगा. अब एमएमआर कैसे होगा? ये दोनों चीजों में आ सकता है एमएमआर, नेशनल में भी और इंडिविजुअल में भी. हम इसको नेशनल में पुट करेंगे बिकॉज एमएमआर इज अ नेशनल इशू. एमएमआर कितना है एज ऑफ नाउ? According to the 2011 census, it was near around 160, but the latest report of 2018 says that it has come down to 130. बहुत इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट्स, इनको हम बाद में यूज करेंगे एनालिसिस के टाइम पे. ओके, आईएमआर कम होगा अगर मैं नेशनल लेवल की बात करूं तो, बिकॉज मोर हेल्थी चाइल्ड विल बी गिवन बर्थ if the woman is well aware, is economically independent, and if she has the reproductive rights. Reproductive rights को कैसे मिली? Because now she has more literacy levels and she is economically independent. तो यहाँ पे एक चीज और लिख लो इंडिविजुअल में कि reproductive rights women को ensure होती हैं, and through these reproductive rights she also has got the marital agency. Now she is in the occupancy of her own decisions. Now she can take her own decisions that when she has to marry and when she has to pursue her career or her ambition. तो IMR कितना है 2011 के हिसाब से इंडिया में? IMR according to 2011 census is 70, लेकिन ये भी significantly reduce हो गया है to near around 33 as of now. Fine. तो नेशनल लेवल पे क्या अचीवमेंट्स हुए? न्यूट्रिशनल आउटकम्स, एमएमआर, आईएमआर. नेक्स्ट, पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन. क्या ये अचीव होगा? डेफिनेटली ये अचीव होगा. कैसे अचीव होगा? यू हैव बेसिकली डिलेड द एज ऑफ मैरिज. नाउ यू आर नॉट अलाउइंग अर्ली मैरिजेस. इफ यू आर नॉट अलाउइंग अर्ली मैरिजेस, देन यू आर आल्सो प्रिवेंटिंग समवेयर अर्ली मदरहुड इन इंडिया. यू एग्री? तो अर्ली मदरहुड को आपने प्रिवेंट कर दिया. ये कीवर्ड्स हैं सारे, आपको यूज करने हैं.
राइट? बस एक एक वर्ड आप ऐसे चार्ट्स में ड्रॉ कर देंगे, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। यही अब डिमांड बनती जा रही है यूपीएससी की, that you need to be precise and you need to be comprehensive. So when you have prevented early motherhood in India, you have delayed the age of marriage, you have already made the women more empowered, reproductive rights, decision making powers you have provided to women. Now she is in the total control of her bodily rights. Now she can decide when she want to get pregnant and when she is pursuing her economic ambitions, her career opportunities. So it is very much obvious that she will take care of the proper spacing between the births, जो फिर से न्यूट्रिशनल आउटकम्स पे अफेक्ट करेगा, आईएमआर पे अफेक्ट करेगा, एमएमआर पे अफेक्ट करेगा, एंड ओवरऑल टीएफआर ऑफ आवर कंट्री विल बी रिड्यूस्ड। टीएफआर क्या होता है? टोटल फर्टिलिटी रेट, the number of births a woman gives in her fertile lifespan. Fertile lifespan is an important word. आप यहाँ पे पूरी लाइफ स्पैन नहीं बोल सकते हैं। तो टीएफआर इंडिया में जब कम होगा तो क्या पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन नहीं हुआ? डेफिनेटली यू हैव अचीव्ड द population stabilization as well. Okay, anything else? Yes, apart from that you also have ensured gender parity. कैसी gender parity? By ensuring or by providing uniform age of marriage in our country. क्या अभी हमारे देश में यूनिफॉर्म एज है? नहीं, 18 है फीमेल की और 21 है मेल की। Is there a reason behind this difference? The answer is uncertain. We do not know if we have any reason. And so we have concluded that this difference is based on irrationality and this needs to be done away with. We need to provide gender parity. तो हम यहाँ पे वी आर प्रोवाइडिंग आर्टिकल थ्रू आर्टिकल 14, आर्टिकल 21, वी आर इंश्योरिंग द वुमेन्स राइट इन आवर कंट्री। तो ये कुछ मेजर बेनिफिट्स हैं जो हम उम्मीद कर रहे हैं, वी आर एक्सपेक्टिंग टू कम इफ वी इंक्रीज द लीगल एज ऑफ मैरिज। तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो ये हो गए आपके बेनिफिट्स। फाइन, अगर आपने फीमेल की एज को इंक्रीज कर दिया, अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस। ओके, तो एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस के लिए थोड़े से फैक्ट्स पहले आप गो थ्रू कर लीजिए कि इंडिया में 60% रूरल मैरिजेस जो होती हैं, 60% of the rural marriages that happen in India, in those marriages the age of bride and groom is below 21 years, or you can say between 18 to 21 years. तो इस गैप में 60% मैरिजेस रूरल इंडिया में हो जाती हैं। ठीक है, अब आपने इस गैप को इंक्रीज कर दिया है। सो आर यू expecting society to change the outlook according to your statute? It is very difficult. So society will still pursue its objective of marrying the girls, because marrying a girl in India is basically driven through the socio-economic necessities of families. दो रीजन होते हैं मेजर, especially among the poor, vulnerable society, vulnerable communities, poor and marginalized sections of our society. दो मेजर रीजन होते हैं कि अर्ली मैरिजेस क्यों की जाती हैं। फर्स्ट, दे आर अनेबल टू टेक केयर ऑफ दैट गर्ल एंड सो दे वांट to provide her a gateway through the marriage to basic securities, essential goods, essential services, सर्वाइवल कंडीशंस इंक्रीज करने के लिए वो कोशिश करते हैं कि हम लड़की को जल्दी उसकी शादी कर दें ताकि उसको बेसिक एसेंशियल्स, बेसिक सिक्योरिटी उसको मिल जाए। राइट? सेकंड होता है दे वांट टू अनबर्डन देमसेल्व्स, वो खुद को भी अनबर्डन करना चाहते हैं ताकि वो बाकी मेंबर्स का वेल टेक केयर कर सके। दे हैव नाउ द मोर रिसोर्सेज अवेलेबल पर कैपिटा बेसिस विद इन अ फैमिली। तो ये दो मेजर रीजन होते हैं जिसको हम सोशियो इकोनॉमिक नेसेसिटीज बोलते हैं, जिसके कारण इंडिया में अर्ली मैरिजेस होती हैं। ओके, इंडिया में मीडियन एज ऑफ मैरिज की अगर मैं बात करूं, मीडियन एज ऑफ मैरिज मतलब क्या एवरेज एज है मैरिज की? सो इट इज एज ऑफ नाउ अराउंड 22 इन इंडिया। इट हैज सिग्निफिकेंटली इंक्रीज्ड इन इंडिया। रूरल में इट इज अराउंड 20 एज ऑफ नाउ। फाइन, ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो इसके इल इफेक्ट्स पे हम आते हैं डायरेक्टली। इफ यू इंक्रीज इट
then please try to understand the age of sexual consent is 18, but you are allowing her to marry at 21. Getting my point? She can form physical relationship at the age of 18, but she can marry only at the age of 21. इससे कितने सारे criticism सामने आएंगे. First criticism, punitive patriotism. Punitive patriotism. What is this? It will provide parents with a tool to punish the eloping daughters or to punish those daughters which are trying to exercise their bodily rights. इंडिया में वो सारे पेरेंट्स को आप इमेजिन करिए जो अपने डॉटर्स को ट्रीट करेंगे, एडवर्सली ट्रीट करेंगे वंस दे फाइंड आउट दैट देयर डॉटर इज सेक्सुअली एक्टिव एंड शी इज नॉट एलिजिबल फॉर मैरिज इन इंडिया. तो ये प्यूनिटिव पेट्रोलिज्म को राइज देगा. सेकेंड, डू यू थिंक that any sexually active women in our country who is above 18 years of age but below 21 years of age will be able to access reproductive or sexual healthcare facilities in our country? The answer is no. And you will find that prevalence of physical relationship or sexual activeness is increasing in our country with time. तो ये जो एक फिनोमेना क्रिएट होगा कि मोर नंबर ऑफ pregnancies are already there. Girls are becoming, not only girls, but teenagers are becoming sexually active at an early age, but you are not allowing them to marry. And you are restricting them also to access the reproductive and sexual health care. So wouldn't this lead to more MMR? Fine, more illegal abortions in India, right? Please try to understand this. So this basically arises from the paradox or the conflict or the dichotomy that is sexual age of sexual consent versus age of marriage. इसमें डिफरेंस क्रिएट कर दिया है आपने. पहले ये सेम है, दिस वॉज द एज ऑफ सेक्सुअल कंसेंट एंड दिस वॉज द एज ऑफ मैरिज, तो ये प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती थी. लेकिन जब आपने इसमें डिफरेंस क्रिएट कर दिया ऑफ 3 years, then there would be difficulty for a woman to access sexual healthcare or reproductive healthcare facilities in our country, leading to illegal abortions and more number of deaths in India. ठीक है? ओके, और क्या प्रॉब्लम होगी यहां से लीगल कंफ्यूजन एंड केओस क्रिएट होगा. कैसे क्रिएट होगा अब वो समझते हैं. लीगल कंफ्यूजन एंड केओस इंक्रीज होगा. देखिए, सिर्फ अभी ये बोला है कि लीगल एज को इंक्रीज करना है. फाइन, तो मतलब आप प्रोहिबिट करने की बात कर रहे हो. 21 ईयर्स से जो नीचे मैरी करेगा दैट इज प्रोहिबिटेड. नाउ हाउ आर यू ट्राइंग टू प्रोहिबिट इट? आर यू ट्राइंग टू क्रिमिनलाइज इट? अगर आप उसे क्रिमिनलाइज करने की बात कर रहे हो कि उससे नीचे जो शादी करेगा उसको हम पनिश करेंगे, तो दैट इज वन थिंग. ठीक है. सेकेंड, आप सिर्फ उस मैरिज को इनवैलिड डिक्लेयर करने की बात कर रहे हो. दैट इज द सेकेंड ऑप्शन दैट यू हैव. तो आप क्या टूल बेसिकली अडॉप्ट करने की कोशिश करो, दैट इज नॉट क्लियर टू अस. ये अभी तक सामने नहीं आया है कि गवर्नमेंट कैसे प्रोहिबिट करेगी, पनिश करेगी कि सिर्फ डिक्लेयर, इट विल डिक्लेयर दैट मैरिज एज इनवैलिड. डिपेंडिंग ऑन दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इन इंडिया देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ हाइपरगैमी. देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ हाइपरगैमी. हाइपरगैमी का मतलब क्या होता है? इन इंडिया द ग्रूम usually looks for a girl as a bride who is smaller in age or younger in age than the age of that groom. बहुत ही कम ऐसा देखने को मिलता है हमारे देश में, एक्सेप्ट इन द केसेस ऑफ लव मैरिजेस, कि ब्राइड और ग्रूम की सेम एज हो. दिस इज द यूनिक फिनोमिना ऑफ आवर सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी. अब अगर आपने दोनों की एज 21 कर दी और आपने इसके पहले अगर कोई मैरी करता है उसको प्रोहिबिट कर दिया, पीनलाइज कर दिया, यहां पे ग्रूम क्या करेगा? ग्रूम विल लुक फॉर द गर्ल हु इज 18 और 19 years old, मे बी 17 years old, लेकिन वो शादी नहीं कर सकता है. तो यहां पे क्या चाइल्ड मैरिजेस इंक्रीज नहीं हो जाएंगे?
because you will have to increase the age of child marriage also from 18 to 21. आप ऐसा तो नहीं कर सकते हो कि चाइल्ड मैरिज अंडर द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट आपने 18 रखा हुआ है एंड लीगल एज ऑफ मैरिज फॉर गर्ल्स आपने 21 कर दिया और बीच के गैप को आपने प्रोहिबिट भी कर दिया. कैसे उसको जस्टिफाई करोगे आप, राइट? तो या तो आप चाइल्ड मैरिज को शिफ्ट करोगे आगे 21 पे, तो आपको पूरा स्टैच्यूज को रिफ्रेम करना पड़ेगा, पॉक्सो एक्ट को भी रिफ्रेम करना पड़ेगा. जो भी चाइल्ड की डेफिनेशन है गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट इन द इंडिपेंडेंट थॉट केस according to the CEDAW, CEDAW, that is the International Treaty Convention on Elimination of all forms of discrimination against women, इसमें भी चाइल्ड की एज 18 है. तो आपको सब जगह चेंजेस करने पड़ेंगे. इट इज अ कॉम्प्लिकेटेड टास्क, राइट? तो यहाँ पे अगर आप चाइल्ड मैरिज की एज को भी इंक्रीज करते हो साथ में, तो चाइल्ड मैरिजेस इंक्रीज इंडिया में इंक्रीज हो जाएंगी बिकॉज ऑफ द फैक्टर ऑफ हाइपरगैमी. और चाइल्ड मैरिज अगर आप बोलते हो दैट वी हैव the prohibition of child marriage act of 2006, then let me remind you that it is not very much effective. I will give you reasons for that. First, let me substantiate my statement by saying that according to UNICEF, there are around 1.5 crore child marriages taking place in our country, and when you look it through the lens of NCRB data of 2018, then you will find that merely 750 FIRs are filed in India. 1.5 करोड़ मैरिज चाइल्ड मैरिजेस इंडिया में हो रही हैं अकॉर्डिंग टू यूनिसेफ, लेकिन FIRs कितनी फाइल हो रही हैं? 750. So where is the loophole? Loophole is with the societal acceptability and subsequent societal validity of these marriages. ये जो मैरिजेस होती हैं ये सोसाइटल कंसेंसस के थ्रू होती हैं, इसीलिए सोसाइटल और सोसाइटी की एक्सेप्टेबिलिटी इन पे ज्यादा होती है और सोसाइटी इसको वैलिडेट करती है. सो दे डू नॉट रिक्वायर अथॉरिटीज टू. ये हमने लव जिहाद के केस में भी देखा था कि स्पेशल मैरिज एक्ट का भी यूटिलाइजेशन बहुत कम हुआ है बिकॉज पीपल इन इंडिया डू नॉट वांट स्टेट टू एनक्रोच इनटू देयर पर्सनल अफेयर्स. और ये चाइल्ड मैरिज एक्ट में क्लियर दिखता है. एक और प्रॉब्लम, थोड़ा सा चाइल्ड मैरिज एक्ट को समझिए यहां पे आराम से. चाइल्ड मैरिज एक्ट क्या ऑटोमेटिकली मैरिज को इनवैलिड डिक्लेयर कर देता है? If there is a child marriage going on and you go and report it to the police station, marriage हो गई, you have reported it in the police station that in that particular house a child marriage has taken place. Now what action can police take? Please try to understand it. Police will go investigate, collect the evidence. They will submit it before the trial court. Trial court maximum क्या कर सकता है? ट्रायल कोर्ट मैक्सिमम पनिशमेंट ऑफर कर सकता है 2 साल की. किसको? ग्रूम को कर सकता है इफ ही इज एन अडल्ट. अगर ग्रूम अडल्ट है और उसने चाइल्ड मैरिज करी है तो उसको 2 साल की सजा मैक्सिमम हो सकती है, रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट. All those people who have solemnized that marriage or have attended that marriage or have facilitated that marriage will also get 2 years of imprisonment. Fine. So this is the only power under the Prohibition of Child Marriage Act 2006. But that marriage is still there. That marriage is still valid. Please try to understand. वो marriage invalid declare नहीं हुई है. वो marriage invalid कब declare होगी? First, या तो ये प्रूफ कर देगा पुलिस through its investigation that it was done through the deceit. लड़की वालों ने बताया ही नहीं कि हमारी लड़की अभी लीगल एज ऑफ मैरिज को क्रॉस कर चुकी है, ये सारे फैक्टर्स हो. लेकिन इमेजिन करिए दोनों फैमिली से कंसेंसस से हुआ है, तो जो मैक्सिमम केसेस में होता है, तो क्या उसको इनवैलिड डिक्लेयर किया जा सकता है? ओनली इन वन केस, इफ द माइनर इन्वॉल्व्ड इन दैट मैरिज within 2 years of attaining adulthood decides to declare that marriage invalid. समझ में आया? अगर एक लड़की है, सपोज करिए 16 साल की, उसकी शादी हो गई, चाइल्ड मैरिज, वो 18 की हुई, अब उसके पास 2 साल है, 20 साल की उम्र तक अगर उसे लगता है कि मुझे इस मैरिज को इनवैलिड डिक्लेयर करना है, so she can do it. Only the minor can do it, no one else.
तो ये जो 2 साल का पीरियड है ये अपने देश में वैसे ही बहुत कम है, बिकॉज अ गर्ल ऑफ 19 years और 19-year-old गर्ल और 20-year-old गर्ल, you cannot expect her to take such a decision against her family, against the society. The first recommendation therefore comes that you need to increase this consent time period from 2 years to at least 4 years, especially for women. मेन के लिए नहीं बढ़ाना है, क्योंकि मेन का क्या है, 21 साल की तो उसकी वैसे ही एडल्टहुड की एज है, तो उसको 2 साल एक्स्ट्रा मिलेंगे, दोनों को 2-2 साल मिलते हैं। तो मेन 23 का होगा तब तक वो डिसाइड कर सकता है। 23 इज सफिशिएंट एज टू गेट द मेच्योरिटी, बट 19 years and 20 years इज नॉट दैट गुड एज। इसीलिए विमेन के केस में 4 साल का कंसेंट बढ़ाना है अंडर द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट, ताकि वो डिसाइड कर सके यूजिंग ऑल हर कंसाइंस कि मुझे ये मैरिज डिक्लेयर करनी है इनवैलिड या नहीं। ठीक है, तो ये कुछ की प्रोविजंस है प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट के। इससे बाहर आपको पढ़ने की जरूरत भी नहीं है प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट, बस यही सारा कैच है और यही सारे मेजर प्रोविजन है। Right? So a child marriage is not declared invalid automatically in India. So what we have to do is we have to make prohibition of child marriage act. Two kind of amendments we have to do. First, we have to increase the time period for women as a minor included in a child marriage from 2 years at present to 4 years, ताकि उसके पास 22 year एज तक का टाइम हो टू डिक्लेयर दैट मैरिज एज इनवैलिड। एंड सेकेंडली, यू हैव टू मेक और यू कैन मेक चाइल्ड मैरिजेस इन आवर कंट्री void ab initio. void ab initio इसका मतलब ऑटोमेटिकली void, nothing else, irrespective of the individuals involved in a child marriage. That marriage, if comes to the notice of court, will be declared as void ab initio. ये बेस्ट मेजर है और यही प्रपोजल है इंक्रीजिंग लीगल एज ऑफ मैरिज के केस में। अगर आप लीगल एज इंक्रीज कर रहे हो 21 पे, तो यू हैव टू मेक श्योर कि इसके पहले आप कोई भी क्रिमिनलाइजिंग या इसके पहले कोई मैरी करता है तो आप उसको क्रिमिनलाइज ना करो। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। अगर आप इसको क्रिमिनलाइज करोगे तो प्यूनिटिव पेटर्नलिज्म और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा इंडिया में। पेरेंट्स इसको यूज करना स्टार्ट कर देंगे अगेंस्ट द इलोपिंग कपल्स। एंड 18 के बाद इफ अ वुमेन अकॉर्डिंग टू द इंडियन मेजोरिटी एक्ट has the right to vote, has the right to enter into any kind of contract, then why she does not have the right to enter into the marriage contract? Please try to understand this. तो आप इसको क्रिमिनलाइज नहीं कर सकते हो। यू कैन व्हाट डू इज यू कैन डिक्लेयर दैट ऑल द मैरिजेस इन इंडिया इफ दे टेक प्लेस बिटवीन द टू इंडिविजुअल्स हु आर बिलो 21 years of age वुड बी डिक्लेयर्ड एज void ab initio। ये कर्नाटका ने ऑलरेडी किया था प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट में ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द शिवराज पाटिल कमेटी, लेकिन उसको प्रॉपरली एडवर्टाइज नहीं किया गया, तो उतना इंप्लीमेंट अभी ये नहीं हो पाया है कर्नाटका में। तो कर्नाटका इज वन स्टेट व्हिच हैज ऑलरेडी अडॉप्टेड void ab initio measure under the prohibition of child marriage act। ओके, चाइल्ड मैरिजेस एक्ट का चाइल्ड मैरिजेस कितनी होती हैं इंडिया में? तो 2005 में एक फैक्ट है 25% के आसपास चाइल्ड मैरिजेस होती थी एंड दे हैव ड्रास्टिकली रिड्यूस्ड टू 12% इन 2015-16। तो चाइल्ड मैरिजेस इंडिया में ऑलरेडी कम हो गई हैं। ये सारे फैक्ट्स मैं अभी एनालिसिस में आगे यूज करूंगा, ठीक है? ओके, अब हम बात करते हैं सेकंड सेट की। जस्ट गिव मी अ सेकंड, थोड़ा सा मैं यहाँ पे इरेज कर दूं, आई नीड सम स्पेस। Okay. Now imagine the second option that you have, जो लॉ कमीशन ने दिया है, जो ह्यूमन राइट्स कमीशन ने दिया है, and 65% of the countries of the entire world basically have the uniform age of marriage, जो proponents भी बोलते हैं, they give it as an argument
that 65% of the countries across the world have the uniform age of marriage. So why can't India have a uniform age of marriage? Even Law Commission in its 2008 report, it came up with a suggestion of having uniform age of marriage, and it asked the government to bring down the age of marriage to 18 years. तो इसने क्या बोला कि मेल की एज आप कम कर दो, 18 years कर दो, फाइन. लेकिन यहाँ पे भी क्या प्रॉब्लम होगी? यहाँ पे प्रॉब्लम समझिए, फिर से हाइपरगैमी की प्रॉब्लम आ जाएगी और चाइल्ड मैरिजेस इंक्रीज हो जाएंगी हमारे देश में. इसके साथ साथ और क्या प्रॉब्लम आएंगी? ये जो मैंने आपको बताया था, न्यूट्रिशनल नीड सबसे ज्यादा हाई होती हैं बिटवीन 15 to 19 ईयर्स, जिससे आपकी हेल्थ कॉम्प्रोमाइज होती है, आपके आने वाले चाइल्ड की हेल्थ कॉम्प्रोमाइज होती है, एंड जिसके कारण ओवरऑल नेशन का फ्यूचर कॉम्प्रोमाइज होता है. तो ये आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं. तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ जेंडर पैरिटी इन इंडिया, यू कैन नॉट ब्रिंग डाउन द एज फ्रॉम 21 to 18. दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल. ऑलरेडी बस आपको इसका आइडिया होना चाहिए कि हमें क्यों नहीं करना. 21 से हम 18 क्यों नहीं कर सकते? अगर आपको जेंडर पैरिटी की बात करनी है तो मेल की एज कम कर दो, जेंडर पैरिटी उससे भी अचीव हो जाएगी. लेकिन ये जो सारे बेनिफिट्स हमने बात करे, ये उसमें आपको नहीं मिल पाएंगे. ठीक है. नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने भी 2018 में यूनिफॉर्म एज ऑफ मैरिज की बात करी, लेकिन उसने ईयर डिफाइन नहीं करा. सिर्फ उसने ये बोला दैट देयर शुड बी जेंडर पैरिटी इन आवर कंट्री. तो अगर हम 18 से 21 करते हैं तो उसमें हमें बहुत सारे नुकसान देखने को मिल रहा है. कैसे नुकसान है? प्यूनिटिव पेट्रोलिज्म का नुकसान है. दूसरा नुकसान है कि एज ऑफ सेक्सुअल कंसेंट में डिफरेंस आ रहा है. एज ऑफ सेक्सुअल कंसेंट वर्सेस एज ऑफ मैरिज में डिफरेंस आ रहा है, जिसके कारण कौन सफर करेगा? एक गर्ल सफर करेगी. उसकी पर्सनल लिबर्टी बेसिकली कॉम्प्रोमाइज हो रही है, बिकॉज शी विल नॉट हैव एनी से according to the Indian society, because we are talking about the Indian society. So a girl in India will not have any say till 21 years of age on her personal matters. तो आप इसमें फर्दर उसके राइट्स कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं till the 21 years age of a girl. इसके अलावा क्या प्रॉब्लम आ रही है? दैट वी डू नॉट हैव द सर्टेनिटी कि क्या होगा अगर इसके पहले शादी कोई करता है. तो क्या आप उसको पेनलाइज करोगे? क्या आप एक क्रिमिनल इसको एक्ट बनाओगे, या आप सिर्फ डिक्लेयर करोगे मैरिज एज इनवैलिड? तो ये सारी प्रॉब्लम है. नाउ द एंटायर थिंग रेस्ट ऑन दिस गैप. इस गैप में क्या प्रॉब्लम है? व्हाट इफ वी कंटिन्यू विद दिस एग्जिस्टिंग गैप ऑफ 3 years? बिकॉज ये गैप जो बनाया गया है, ये हाइपरगैमी को देखते हुए शायद बनाया गया है इंडिया में, और यहीं से शायद हमारा सोसाइटी का आउटलुक ऐसा क्रिएट हुआ है कि ब्राइड और ग्रूम में एज का डिफरेंस होना चाहिए. राइट? तो इस गैप में क्या प्रॉब्लम है? Now please try to understand it and substantiate it with the facts that we already have seen. India has already drastically reduced MMR. India has already drastically reduced IMR. India has already reduced TFR. ये हमने अभी रिसेंट के NFHS सर्वे में देखा, SRS की 2018 रिपोर्ट में देखा, that more than 14 states in India have already achieved the replacement levels in our country. The population is already stabilizing, women health is already improving, median age of marriage is already 22. So why there is need to create more legal confusion and chaos by increasing the age from 18 to 21? Instead, what you can do is you basically should focus on inherent structural inequalities in our country. So what are these inherent structural inequalities? Inequalities with respect to health, with respect to education, with respect to discrimination among women in the Indian society, right? तो हमें इन चीजों पर ज्यादा फोकस करना चाहिए rather increasing the age, because इससे लीगल कंफ्यूजन, लीगल केओस क्रिएट हो रहा है. काफी सारे स्टैचूज आपस में कॉन्ट्राडिक्ट करने लगेंगे. गेटिंग माय पॉइंट? और बाकी सारे प्रॉब्लम्स हम देख चुके हैं, प्यूनिटिव पेटर्नलिज्म एंड डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल कंसेंट एंड age of marriage in our country. So what is the best way forward? That is to focus on inherent structural inequalities and try to make youth of our country self-reliant. ये आपकी concluding line होनी चाहिए इस पूरे टॉपिक की. Make youth of our country self-reliant so that they can decide when they have to marry, and how they basically have to exercise their bodily rights.
rather state encroaching upon the personal matters of an individual. फाइन. तो ये जो बेनिफिट्स यहाँ पे बात करी है, दोज आर नेसेसरी, बट वी ऑलरेडी आर अचीविंग इट. हमने बहुत प्रोग्रेस करी है. आप एमएमआर देखिए, आईएमआर देखिए, टीएफआर देखिए, पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन देखिए, मीडियन एज ऑफ मैरिज देखिए, सब ऑलरेडी हम अचीव कर रहे हैं. तो जरूरी नहीं है कि अब हम एज को इंक्रीज करें, बिकॉज जस्ट फॉर द सेक ऑफ जेंडर पैरिटी यू विल बी क्रिएटिंग फर्दर एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द सेम. तो जेंडर पैरिटी हर जगह जरूरी नहीं है. यहाँ पे अगर आप उसको ऐसे ही रहने देंगे तो दैट इज गुड बिकॉज ऑफ द हाइपरगैमी इशू इन आवर कंट्री. यहाँ पे किसी को कोई डाउट है, इस जो डायग्राम है ना, इससे समझने की कोशिश करना, बहुत अच्छे समझ में आएगा आपको. राइट? किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे डिस्कस करें, अदरवाइज हम नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पे पिक करेंगे. बढ़े आगे? कोई डाउट नहीं किसी को? ओके. पीएम किसान फ्रॉम द प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव आज रिवाइज कर लेते हैं. प्रीलिम्स आ रहा है तो फटाफट स्कीम्स भी हमारी रिवाइज होती रहेंगी. एंड कुछ मेंस पर्सपेक्टिव से क्या प्रॉब्लम है पीएम किसान में, वो आज आर्टिकल में आई है. सो साइड में हम वो प्रॉब्लम भी लिख लेंगे. ऐसे विद टाइम वी विल बी हैविंग द कंप्लीट एनालिसिस ऑफ पीएम किसान. तो पीएम किसान scheme basically was launched in 2018 by the government, central government, and it stands for PM Kisan Samman Nidhi. It is an income support scheme. Income support scheme. For whom? Obviously for farmers. What is the nature of this scheme? It is a centrally sponsored scheme, not central sector scheme. Okay, what kind of income support are we trying to provide in PM Kisan? We are trying to provide to all the farmers who have land holding. Keyword, please underline it. Only to those farmers who have land holding on their own name. कुछ टाइम पहले हमने देखा था कि हमारे देश में 73% विमेन, रूरल विमेन एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयड है और 80% के पास लैंड टाइटल्स नहीं है. तो वो सारे से एक्सक्लूड हो जाते हैं. ठीक है? तो पीएम किसान किसको अवेलेबल है? ऑल दोज फार्मर्स हु हैव लैंड होल्डिंग ऑन देयर नेम will get 6,000 rupees per annum per family in 3 equal installments every 4 months each. हर 4 महीने में 2,000 रुपए की एक इंस्टॉलमेंट चली जाएगी. तो यहाँ पे दो ट्रिकी क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं. एक ट्रिकी क्वेश्चन फ्रेम होता है कि लैंड होल्डिंग पे, जो मैंने आपको क्लैरिफाई कर दिया. दूसरा होता है साइज ऑफ लैंड होल्डिंग पे, कि क्या कोई साइज यहाँ पे मेंशन्ड है. तो साइज पहले यहाँ पे याद रखिए कि पहले यहाँ पे मेंशन था 2 हेक्टेयर्स का. वो सारे किसान जो 2 हेक्टेयर से कम जमीन है जिनके पास, उनको 6,000 रुपए मिलेंगे. दोज विल बी द बेनिफिशियरीज अंडर पीएम किसान. लेकिन 2019 के सेकेंड हाफ में इस स्कीम को यूनिवर्सलाइज कर दिया गया एंड इट वाज एक्सपैंडेड टू कवर ऑल द फार्मर्स इन आवर कंट्री हैविंग लैंड होल्डिंग इन देयर नेम. तो चाहे लार्ज फार्मर हो, चाहे छोटा फार्मर हो, चाहे मार्जिनल फार्मर हो, एनी काइंड ऑफ फार्मर इन इंडिया एक्सेप्ट द फार्मर हु हैज द माइक्रो लैंड होल्डिंग. Micro land holding is considered uncultivable and so PM Kisan is not given to those land holders जिनके पास माइक्रो लैंड होल्डिंग है. इसका कुछ फिगर नहीं है. स्मॉल लैंड होल्डिंग का फिगर होता है 1 हेक्टेयर. तो 1 हेक्टेयर के नीचे और छोटे छोटे जब पार्सल्स बन जाते हैं लैंड को, तो उनको हम माइक्रो लैंड होल्डिंग्स बोल देते हैं. तो माइक्रो लैंड होल्डिंग्स के केस में पीएम किसान आप अवेल नहीं कर सकते हैं एंड इट इज अवेलेबल टू all the farmers irrespective of the size of land holding. Fine. Who are all ineligible individuals under the PM किसान? किसको PM किसान नहीं मिलेगा? तो अगर कोई फार्मर इनकम टैक्स पे करता है तो उसको ये स्कीम अवेल नहीं कर सकता है. वो all the central government and state government employees cannot avail this particular scheme. All the pensioners, important, बहुत एक ट्रिकी स्टेटमेंट फ्रेम हो जाएगा. पेंशनर्स इन इंडिया आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द पीएम किसान. यस और नो? द आंसर इज नो. ओनली दोज पेंशनर्स हु हैव द पेंशन ऑफ मोर देन 10,000
per month are excluded from this scheme. Now whether they are farmer or not does not matter. अगर आपकी पेंशन आती है 10,000 रुपए महीने से ज्यादा तो आपको ये स्कीम के बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे. And all the professionals like doctors, engineers, and so on are automatically excluded from this particular scheme. How is the amount transferred? It is directly transferred into the bank account of the लैंड ओनर. जिसकी लैंड है उसके बैंक अकाउंट में डायरेक्टली ये पैसा ट्रांसफर हो जाएगा. क्या कोई डिस्टिंक्शन है बिटवीन द रूरल फार्मर्स एंड अर्बन फार्मर्स? देन देयर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन द रूरल फार्मर्स एंड अर्बन फार्मर्स. ओके, ये सारे फैक्ट्स बेसिक्स आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं पीएम किसान के रिस्पेक्ट में. और प्रॉब्लम्स का अब कोई भी, मुझे नहीं लगता कि कोई स्टेटमेंट इसके आउट ऑफ जाके फ्रेम कोई कर सकता है. अगर यहाँ पे कोई क्लैरिटी आपको डेवलप हो गई है तो यू आर डन विद द प्रॉब्लम्स. मेंस में एक यहाँ पे लैक्यूना सामने आया, दैट इज द एक्सक्लूजन एरर्स. इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट 1300 crore rupees were wrongly credited to the individual's account who basically are ineligible for the PM Kisan. तो ये एक बेसिक एक्सक्लूजन एरर सामने आया है, दैट यू आर अनेबल टू एक्सक्लूड दी और यू आर बेसिकली अनेबल टू आइडेंटिफाई दी बेनिफिशियरीज. तो ये मेंस के रिस्पेक्ट में आप एक पॉइंट बता सकते हैं. दूसरा मेंस के रिस्पेक्ट में आप जो पॉइंट बताएंगे दैट इज दी you will criticize the government. I'm sorry, you will criticize the government of expanding the benefit or of expanding the list of beneficiaries of this scheme by including all the farmers irrespective of the size of land holding, because large farmers do not require 6,000 rupees for the income support. Previously it was fine कि आप small and marginal farmers को support provide कर रहे हैं of 6,000 rupees, and why is the need to include all the farmers when the large land holding farmers already have many benefits in terms of high productivity, economies of scale, etc. जो मेजर प्रॉब्लम है वो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के अमंग ही है. तो स्कीम को वहीं पे ही रेस्ट्रिक्ट करना चाहिए था, इसको यूनिवर्सलाइज नहीं करना चाहिए था. फाइन. और इंस्टेड गवर्नमेंट क्या कर सकती थी कि जो गवर्नमेंट एक्स्ट्रा अमाउंट पे कर रही है बाय इंक्लूडिंग द लार्ज फार्मर्स एंड मीडियम फार्मर्स. मीडियम फार्मर वो होता है जिसके पास 4 हेक्टेयर की लैंड होती है. तो बाय इंक्लूडिंग मीडियम एंड लार्ज फार्मर वो होता है जिसकी 10 हेक्टेयर की लैंड होती है. तो इतने बड़े बड़े फार्मर्स को आपने इंक्लूड कर लिया. आप बेटर ये कर सकते थे कि इन फार्मर्स को आप जो एक्स्ट्रा अमाउंट दे रहे हो वो आप इसमें इंक्लूड करके 6,000 की वैल्यू बढ़ा सकते थे, इसको 8,000 कर सकते थे, इसको 10,000 कर सकते थे. तो इनपुट सपोर्ट एक फार्मर को बेटर प्रोवाइड होता, उसको एक इनकम सपोर्ट जो आप दे रहे हो वो और ज्यादा इफेक्टिव हो सकता था. ठीक है. प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, सिर्फ एक या दो पॉइंट यहां पे जानने हैं आपको अबाउट द ज़ूको वैली. ज़ूको वैली कहां है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही है. वेयर इट इज इन द नॉर्थ ईस्ट एंड इट फॉल्स इन द बॉर्डर ऑफ नागालैंड एंड मणिपुर. व्हाई इट इज इन न्यूज? बिकॉज ऑफ फॉरेस्ट फायर आउट हियर. तो यहाँ पे वाइल्ड फायर हो गई है एंड बिकॉज ऑफ दिस इट इज इन न्यूज. तो प्रीलिम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, ज़ूको वैली करेंटली इन न्यूज इज लोकेटेड वेयर इन इंडिया. तो आपको पता होना चाहिए नागालैंड एंड मणिपुर के बॉर्डर में ये आती है. इसका कोई स्पेसिफिक ओनरशिप नहीं है. द ओनरशिप इज स्टिल कंटेस्टेड बिटवीन द नागालैंड एंड मणिपुर. तो इट इज फाउंड बिटवीन मणिपुर एंड नागालैंड. इट इज नोन फॉर एक्सोटिक फ्लावर्स एंड रोलिंग हिल्स. रोलिंग हिल्स आर बेसिकली द स्मॉल हिल्स विच आर कंटिन्यूअस इन मैनर. तो छोटे छोटे जब हिल्स होते हैं बहुत सारे तो उसको हम रोलिंग हिल टोपोग्राफी बोलते हैं. So that is the topography which is found here and it is known for exotic flowers. Also it is famous for the trekking activities. ठीक है. Okay, gender equality पे क्वेश्चन आया है and it is important from the mains perspective. आपको कुछ पॉइंट्स यहां से एक्सट्रैक्ट करने हैं with respect to the होम केयर बोल लीजिए या ओवरऑल केयर इकोनॉमी में आप बता सकते हैं. कुछ पॉइंट्स हैं, मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं. जस्ट गिव मी अ सेकंड, आर्टिकल ओपन कर लूं मैं. यस.
तो तमिलनाडु में एक स्टेप ली जा रही है, एक पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो बनाया है दैट वी विल बी प्रोवाइडिंग recognition to the household work or the domestic or care work of women. Now it is being criticized and it is being appreciated as well. तो जो हाउस केयर वर्क है, हाउस होल्ड वर्क है, हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं विमेन की, थोड़ा सा उसको अंडरस्टैंड करिए बस। यहाँ पे 2-4 पॉइंट है, ज्यादा नहीं। इन इंडिया देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ रिकग्निशन विद रिस्पेक्ट टू द हाउस होल्ड केयर इकोनॉमी, उनको रिकग्नाइज नहीं किया जाता है। सेकेंड प्रॉब्लम इज ऑफ द रिडक्शन ऑफ द वर्क, एंड थर्ड प्रॉब्लम इज ऑफ द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वर्क। तो ये हमने वर्क फ्रॉम होम जब हम पढ़ रहे थे तब भी हमने देखा था, वहां पे भी आप ये तीनों पॉइंट्स बता सकते हैं कि वर्क फ्रॉम होम में क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रही है। तो विमेन ज्यादा प्रॉब्लम फेस कर रही है बिकॉज देयर वर्क इज नाइदर रिकग्नाइज्ड नॉर रीडिस्ट्रीब्यूटेड एंड रिड्यूस्ड सब्सिक्वेंटली। ठीक है, तो ये 3 मेजर प्रॉब्लम्स हैं इंडिया में विद रिस्पेक्ट टू विमेन एंड हाउस होल्ड वर्क और केयर इकोनॉमी। तो तमिलनाडु में जो पॉलिटिकल पार्टी है जिसने अपने मैनिफेस्टो में ये बोला है दैट वी विल नाउ रिकॉग्नाइज दिस वर्क एंड प्रोवाइड रेम्यूनरेशन। तो इससे रिकॉग्निशन तो प्रोवाइड हो गया टू दिस वर्क डेफिनेटली, लेकिन क्या इससे रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, क्या इससे रिडक्शन होगा वर्क का? नहीं, इससे इनफैक्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन, इससे इनफैक्ट वर्क जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। Because now it will be assumed that your work has been recognized and you are being paid for it. So why do I need to share your work? It's your job, you do it. Fine. तो ये जो nudging activity के through आपको solve करना था issue, you basically are trying to solve it through the financial terms by providing monetary incentives, which is not the way out for this kind of problem. तो ये बस थोड़ा सा आप यहाँ पे अंडरस्टैंड करिए कि रिकग्निशन जरूरी है, लेकिन रिकग्निशन नॉट इन द टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। यू नीड टू रिकग्नाइज दैट वर्क सो दैट यू कैन रीडिस्ट्रीब्यूट दैट वर्क विद इन द फैमिली मेंबर्स, स्पेशली अमंग द स्पाउस। तो जो कपल है वो आपस में रीडिस्ट्रीब्यूट करें इस वर्क को, स्पेशली व्हेन यू टॉक अबाउट द वर्क फ्रॉम होम नेचर ऑफ और द न्यू नॉर्म ऑफ डूइंग वर्क इन इंडिया, राइट? So you need to incentivize men to participate more, and this incentivization should not be financial or monetary in terms. Okay, आगे बढ़ते हैं। मैरीटाइम सिक्योरिटी कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज में एक छोटा सा एग्जांपल जो आप यूज कर सकते हैं, दैट इज द सी विजिल एक्सरसाइज। प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। सी विजिल एक्सरसाइज के ऊपर मल्टीपल स्टेटमेंट्स फ्रेम किए जा सकते हैं और आपको पता होना चाहिए कि सी विजिल की इंपॉर्टेंस क्या है। तो सी विजिल एक्सरसाइज इज द लार्जेस्ट ऑफ ऑल कोस्टल एक्सरसाइज कंडक्टेड इन इंडिया। इट इज द लार्जेस्ट ऑफ ऑल द कोस्टल मैरीटाइम एक्सरसाइजेस। स्टार्टेड इन 2019, बाइनियल होती है ये नेचर में, एंड दिस ईयर इट इज बीइंग कंडक्टेड अलोंग विद द ट्रॉपिक्स एक्सरसाइज। ट्रॉपिक्स स्टैंड्स फॉर थिएटर लेवल एक्सरसाइज, दैट इज थिएटर लेवल रेडीनेस एंड ऑपरेशनल एक्सरसाइज। थिएटर लेवल रेडीनेस एंड प्रिपेयर्डनेस एक्सरसाइज बोलते हैं। यहाँ पे ऑपरेशनल शायद गलत यूज किया है द हिंदू ने, इट शुड बी प्रिपेयर्डनेस। ओके, थिएटर लेवल रेडीनेस एंड प्रिपेयर्डनेस एक्सरसाइज। तो ट्रॉपिक्स और सी विजिल में डिफरेंस क्या है? सी विजिल का जो एक्सरसाइज करने का ज्योग्राफिकल एक्सपांस होता है दैट इज अक्रॉस द कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया, दैट इज 7,500 किलोमीटर। कंप्लीट इंडिया कोस्ट लाइन पे एक्सरसाइज होती है। ट्रॉपिक्स में यू इंक्लूड ऑल दी आर्म्ड फोर्सेस, दैट इज यहाँ पे आर्मी भी होगी, एयरफोर्स भी होगी और नेवी भी होगी। So you will try to ensure interoperability of forces, and through the sea vigil you basically are trying to have or conduct a security exercise at a national level to assess the preparedness, especially in terms of maritime security and coastal defense. तो ये एक realistic assessment होता है of strengths and weakness. Okay, थोड़े से और यहाँ पे prelims रिलेटेड हम क्वेरीज एक्सपंज करते हैं। काफी डाउट्स कंफ्यूजन्स क्रिएट होते हैं विद रिस्पेक्ट टू प्रोटेक्टेड नेशनल पार्क्स। प्रीलिम्स में काफी सारे क्वेश्चंस फ्रेम हो जाते हैं। तो मेरा एक सजेशन रहेगा आप लोगों के लिए कि प्रीलिम्स की एक छोटी सी डायरी बना लो। अभी से हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रीलिम्स को असेस करना, तो ऐसे जो छोटे छोटे हम टॉपिक्स डिस्कस करते हैं उसको आप फटाफट नोट डाउन कर लो वहां पे, और प्रीलिम्स के 1-2 महीने पहले से आप रिवाइज करना स्टार्ट कर दोगे, सो दैट विल बी वेरी मच बेनिफिशियल फॉर यू ऑल।
So today we will be talking about the protected areas. Protected areas के रिस्पेक्ट में एक सर्वे रिलीज किया मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज ने, दैट इज द मैनेजमेंट इफेक्टिव इवैल्यूएशन. मैनेजमेंट इफेक्टिव इवैल्यूएशन. It has tried to bring the competitive federalism in India, especially in the terms of environmental conservation among the states, by ranking the national parks, wildlife sanctuaries ऑफ डिफरेंट स्टेट्स, ताकि स्टेट्स इसमें पार्टिसिपेट करने लगे और कंजर्वेशन एफर्ट अपना इंक्रीज कर सके. फाइन. तो प्रोटेक्टेड एरियाज कितने हैं हमारे देश में? नियर अराउंड 903 हैं. ये फैक्ट्स हैं, क्या उतने इंपॉर्टेंट नहीं है. क्या क्या होते हैं प्रोटेक्टेड एरियाज? तो दे आर नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, कम्युनिटी और कंजर्वेशन रिजर्व्स एंड टाइगर रिजर्व्स. ये 4 टाइप के प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं and these are declared as protected areas under the Wildlife Protection Act of 1972. ये सब इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से. मैनेजमेंट इफेक्टिव इवैल्यूएशन ने कैसी रैंकिंग करी है? तो मैनेजमेंट इफेक्टिव इवैल्यूएशन के हिसाब से द बेस्ट नेशनल पार्क हैज बीन गिवन द फर्स्ट रैंक ऑफ द नेशनल पार्क हैज बीन गिवन टू द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क ऑफ हिमाचल प्रदेश. अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. It is also a UNESCO World Heritage Site. Point number 1. It is in the Kullu district of Himachal Pradesh. यहाँ पे आप ब्यास रिवर की बात कर सकते हैं, पार्वती रिवर की बात कर सकते हैं. There are 2 important wildlife sanctuaries in and around the Great Himalayan National Park, and these are तीर्थन Wildlife Sanctuary. इसको भी मैनेजमेंट इफेक्टिव इवैल्यूएशन ने सेकंड पोजीशन दी है, जो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क में ऑलरेडी है. तो तीर्थन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड सांझ सेंचुरी, सांझ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. तो तीर्थन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में तीर्थन रिवर है और सांझ में सांझ रिवर है. बोथ आर पार्ट ऑफ ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, लेकिन दे आर डिफरेंटली नोटिफाइड एज वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज. These are famous for the snow leopards and इसके अलावा यहाँ पे आप बात कर सकते हैं, yes, very important, they form the junction of 2 important biogeographic realm. There are 8 biogeographic realms. ये biogeographic realms हैं: न्यू आर्कटिक, पैलियो आर्कटिक, इंडो मलायन, एफ्रोट्रॉपिकल, न्यूट्रॉपिकल, ओशियानिक, राइट. तो 2 इंपॉर्टेंट बायोजियोग्राफिक रिल्म यहाँ पे जंक्शन फॉर्म करती हैं ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क में. ये जो जंक्शन देख रहे हैं आप यहाँ पे, दिस इज द जंक्शन बिटवीन इंडो मालया बायोजियोग्राफिक रिल्म एंड पैलियो आर्टिक बायोजियोग्राफिक रिल्म. ये दोनों जहां पे मीट करती हैं, दैट इज द रीजन ऑफ ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क. ये ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है. दिस इज द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क. दिस इज द सांझ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. और ये जो एरिया है, दिस इज द तीर्थन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. So this is the Sanj river, this is the Tirthan river, and they together meet and form the Beas river. आगे चल के तो ये इंपॉर्टेंट था अबाउट द नेशनल पार्क्स. और इसके अलावा जो वर्स्ट रैंकिंग प्रोवाइड करी गई है, दैट हैज बीन गिवन टू द टर्टल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और कछुआ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी इसको बोलते हैं. सो इट इज लोकेटेड इन यूपी, वाराणसी. 1989 में इसको बनाया गया था एंड इट इज फेमस फॉर द टर्टल ब्रीडिंग एंड कंजर्वेशन एक्टिविटीज एंड ऑल्सो गंगा डॉल्फिन इज फाउंड हियर, गैंजेस डॉल्फिन जिसको आप बोलते हैं. सो दैट इज ऑल्सो फाउंड इन दिस कछुआ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. तो इसको वर्स्ट कैटेगरी दी गई है. ठीक है. अब थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं नेशनल पार्क की, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, कंजर्वेशन रिजर्व की, कम्युनिटी रिजर्व्स की, एक्सेट्रा. तो नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में डिफरेंस क्या होता है? बहुत ही क्लीशे क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता है और हर बार स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज रहते हैं. तो पहले हम बात करते हैं नोटिफिकेशन से कि कौन इनको नोटिफाई कर सकता है. काम करिए, एक छोटा सा टेबल बना लीजिए ऐसा. यहाँ पे लिखिए नेशनल पार्क, यहाँ पे लिखिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और पॉइंट्स यहाँ पे आप जॉट डाउन करते रहिए. सो हु हैज द अथॉरिटी टू नोटिफाई अ नेशनल पार्क एंड अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? They can be notified by either state government और by the central government. दोनों इसको नोटिफाई कर सकते हैं. ठीक है.
ओके, छोटा सा एक डिफरेंस है। अगर स्टेट गवर्नमेंट इसको नोटिफाई करता है तो जो वाइल्ड लाइफ रिजर्व या नेशनल पार्क के रेगुलेटरी पावर्स होती हैं वो स्टेट के चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन के पास नहीं जाती है, लेकिन एक ऑफिसर के पास जाती है ऑफ डायरेक्टर लेवल, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करे। दिस इज द डिफरेंस। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर कर दी तो उसको स्टेट गवर्नमेंट का चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन मैनेज नहीं करेगा, उसके पास पावर्स नहीं होंगी अनटिल एंड अनलेस सेंट्रल गवर्नमेंट उसको नोटिफाई करता है एज अ कंसर्न अथॉरिटी। ठीक है, ये थोड़ा सा डिफरेंस है। और अगर स्टेट गवर्नमेंट करती है तो बाय डिफॉल्ट चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन के पास उसकी रेगुलेटरी पावर्स आ जाती हैं। ओके, सो दे कैन नोटिफाई wildlife sanctuary and national parks in our country. So can they alter the boundaries as well? No, they cannot alter the boundaries. They have to take prior permission from the National Board of Wildlife. Who is the chairman of National Board for Wildlife? Prime Minister of our country. ये छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं, कंफ्यूज करते हैं प्रॉब्लम्स में, इसलिए मैं आपको यहाँ पे आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर बाउंड्री को ऑल्टर करना है, रेस्ट्रिक्ट करना है, छोटा करना है, बड़ा करना है, कुछ भी वहां पे मेजर डिसीजन लेना है विद रिस्पेक्ट टू द डेवलपमेंटल एक्टिविटी एंड सो ऑन, सो द प्रायर अप्रूवल इज रिक्वायर्ड ऑफ नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, जो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। इस बोर्ड को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था 2003 में। ठीक है, हु इज द चेयरमैन? प्राइम मिनिस्टर इज द चेयरमैन। ठीक है, क्या डिफरेंसेस हैं? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बाउंड्रीज जो हैं वो डिफाइन नहीं है, मतलब हो सकता है डिफाइंड हो सकता है डिफाइंड ना हो, बट इन द केस ऑफ नेशनल पार्क बाउंड्रीज आर ऑलवेज डिफाइंड। बाउंड्रीज आर डिफाइंड, which is not always true in case of wildlife sanctuary. Not always true. Okay. With respect to the rights of people, the rights of people are severely restricted in case of national park, and only those rights are available which have been permitted by the CWW. कौन है CWW? Chief of Wildlife Warden. ये जो राइट्स अलाउ करेगा बस वही राइट्स अवेलेबल होंगी नेशनल पार्क के विद इन। लेकिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में देयर आर मल्टीपल राइट्स अवेलेबल टू द पीपल रिसाइडिंग इनसाइड अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ओके, कैन अ नेशनल पार्क बी डिग्रेडेड टू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? देन द आंसर इज नो। Wildlife national park once declared cannot be degraded to wildlife sanctuary. Okay, fine. Can a wildlife sanctuary be upgraded to national park? Then yes, wildlife sanctuary can be upgraded to national park, but national park cannot be degraded as wildlife sanctuary. ठीक है? The last difference, in wildlife sanctuary there is no clear, or you can say there is continuous biotic interference. That is, two ecological zones can basically interfere with each other. So there is continuous biotic interference in case of wildlife sanctuaries, क्योंकि इसकी boundaries भी define नहीं होती हैं। Whereas national park के case में biotic interference नहीं देखने को मिलता है। So there is no biotic interference in case of national park. तो प्रोटेक्टिव टर्म्स में अगर हम बात करें, द हाईएस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइडेड इन इंडिया इज टू द नेशनल पार्क, देन टू द वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, एंड देन कम्स कम्युनिटी रिजर्व्स और कंजर्वेशन रिजर्व्स। तो ये क्या होता है फिर? दीज आर ऑल्सो नोटिफाइड बाय द स्टेट गवर्नमेंट अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972, बट दीज आर जनरली बफर जोन्स। ये बफर जोन्स होते हैं और ट्रांजिशन जोन्स होते हैं। These can also be the migratory corridors of the animals. So these can be defined as conservation reserves. ये next set of priority में आते हैं in terms of protection. Most protected, then second पे protected areas are wildlife, third protected areas are conservation reserves. Tiger reserve क्या होता है? Tiger reserve is any geographic biogeographic region
जो बेसिकली आप ट्रेस आउट कर सकते हैं ईदर फ्रॉम द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और फ्रॉम द नेशनल पार्क वेयर यू फाइंड सफिशिएंट नंबर ऑफ सफिशिएंट पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स। इसको रेगुलेट करता है एनटीसीए, जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, प्रोजेक्ट टाइगर एंड सो ऑन। ठीक है, तो प्रोटेक्टेड एरियाज इंडिया में ये बेसिकली 4 होते हैं: नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कंजर्वेशन कम्युनिटी रिजर्व एंड टाइगर रिजर्व। टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क में भी एक टाइगर रिजर्व हो सकता है, टाइगर रिजर्व अलग से भी हो सकता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में भी एक टाइगर रिजर्व हो सकता है, उसके बाहर भी एक टाइगर रिजर्व हो सकता है, टोटली डिपेंडिंग अपॉन द पॉपुलेशन ऑफ टाइगर इन दैट ज्योग्राफिक जोन। किसी को कोई डाउट, आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा, एक और यहां पे आता है बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है? तो बायोस्फीयर रिजर्व प्रोटेक्टेड एरिया है बट नॉट अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव। अगर आता है कि फ्रॉम बिलो गिवन प्रोटेक्टेड एरियाज, what all protected areas are protected under the wildlife protection act, NPWS, CS, tiger reserve, biosphere reserve. तो biosphere reserve is not that one because biosphere reserve is according to the UNESCO's MAB program, that is man and biosphere। ठीक है, तो ये इसका पार्ट नहीं है। ओके, एमजी नरेगा के रिस्पेक्ट में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपको पता होने चाहिए। दिस गिव्स यू द आइडिया और दिस गिव्स यू yes an idea about the importance of MG नरेगा स्कीम इन आवर कंट्री। कितनी इंपॉर्टेंट है ये। कोविड-19 के टाइम से देयर वाज रिवर्स माइग्रेशन एंड देयर वाज नीड ऑफ jobs in the rural landscape of our country. Also, it was required for increasing the consumption in India so as to come out from the economic slowdown. Getting my point? तो सबसे ज्यादा हमने रिलाय किस पे किया? हमने एमजी नरेगा के प्रोग्राम पे किया बिकॉज इट इज काइंड ऑफ इनकम सपोर्ट एंड डायरेक्ट कैश ट्रांसफर स्कीम। एमजी नरेगा स्कीम इस साल उसने रिकॉर्ड बनाया है ऑफ हाईएस्ट एनरोलमेंट ऑफ अराउंड 10 करोड़ पीपल सिंस इट वाज लॉन्च्ड इन 2005 एंड 6। तो ये क्लियरली शो करता है इंपॉर्टेंस ऑफ एमजी नरेगा इन आवर कंट्री एंड हाउ इट इज सपोर्टिंग द रूरल लैंडस्केप, रूरल एम्प्लॉयमेंट, अरेस्टिंग द फॉल ऑफ रूरल एम्प्लॉयमेंट इन आवर कंट्री। इसके साथ साथ हाईएस्ट एलोकेशन, बजटरी एलोकेशन भी इसी साल हुआ है, दैट इज 2020 में, ऑफ 1 लाख करोड़ इन दी एमजी नरेगा स्कीम। तो गवर्नमेंट ने इसको कंप्लीट सपोर्ट प्रोवाइड किया है और अभी भी 83% इसका यूटिलाइजेशन हुआ है। 17% के आसपास फंड्स अभी भी बचे हुए हैं जो नेक्स्ट 2 मंथ्स में यूटिलाइज डेफिनेटली हो जाने चाहिए। तो कैसे गवर्नमेंट ने हेल्प करा, यूज करा एमजी नरेगा को, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एमजी नरेगा, हाउ इट हेल्प्ड अरेस्ट दी फ्री फॉल और डिक्लाइनिंग एम्प्लॉयमेंट रेट्स इन आवर कंट्री, ये सारे पॉइंट्स आप इस फैक्ट के थ्रू बता सकते हैं। और एमजी नरेगा को रिवैम्प करने की भी क्यों जरूरत है, ये भी यहीं से सामने आता है बिकॉज इट इज द मोस्ट कंज्यूम्ड स्कीम एज ऑफ नाउ इन आवर कंट्री। तो क्या यहाँ पे मेजर रिफॉर्म्स हैं? ऑन साइट जॉब रजिस्ट्रेशन, जॉब कार्ड को रिप्लेस करके ऑन साइट जॉब रजिस्ट्रेशन, स्किलिंग अंडर दी एमजी नरेगा, क्योंकि अभी यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट होता है दैट इज मेजरली डन फॉर द अनस्किल्ड ह्यूमन लेबर। तो इसको हम बेसिकली शिफ्ट कर सकते हैं फॉर द कैपिटल असेट्स क्रिएशन in the rural areas. Also, we can link it with the agricultural activities. We can link it with the MSME sectors. These are some of the reforms जो आप यहाँ पे बात कर सकते हैं। ठीक है, ओके, कोल सेक्टर के रिस्पेक्ट में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एक नया यहाँ पे इनिशिएटिव लिया गया है। सिंगल विंडो क्लियरेंस अप्रूवल हैज बीन प्रोवाइडेड इन द कोल सेक्टर एज ऑफ नाउ, जो पहले अवेलेबल नहीं था। So previously, a company who has to invest in the coal sector in a country has to take near around 19 major approvals। तो पहले एक कंपनी को 19 अप्रूवल्स लेने पड़ते थे इंक्लूडिंग दी एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस एंड सो ऑन। तो इस सबको अब रिप्लेस कर दिया है एक सिंगल विंडो क्लियरेंस पोर्टल ने,
जिसको अब यूटिलाइज करके कोई भी एक कंपनी क्लियरेंस अचीव कर सकती है और एक्सप्लोरेशन एक्टिविटीज, माइनिंग एक्टिविटीज स्टार्ट कर सकती है विद रिस्पेक्ट टू कोल इन इंडिया. This will give bigger push, greater push in investments in India and also help us to achieve the target of becoming 5 trillion economy by 2025. छोटा सा पॉइंट है बस, मेंस में आप यूज करोगे इसको कि इन्वेस्टमेंट में इंडिया क्या कर रही है. ठीक है, तो जैसे भी क्वेश्चन आया था ना कैपिटल फॉर्मेशन पे, तो कैपिटल फॉर्मेशन पे क्या होता है बेसिकली. कैपिटल फॉर्मेशन का मेंस में क्वेश्चन आया था, मुझे पूरा याद नहीं है, मैं बस पेपर ऐसे गो थ्रू कर रहा था, मैंने पेपर्स को भी स्टडी नहीं करा है ढंग से. तो GS3 एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था वो पर्टिकुलर क्वेश्चन कि सर ये क्या है, तो मैंने ऐसे ही गो थ्रू करा क्वेश्चन, तो उसमें कैपिटल फॉर्मेशन लिखा था कि इन्वेस्टमेंट कैपिटल फॉर्मेशन कैसे क्रिएट करता है. तो कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है, देखिए बेसिक सी चीजें हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि यूपीएससी ने कुछ आउट ऑफ द वे पूछ लिया, आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट पूछ लिया. कैपिटल फॉर्मेशन कैसा होता है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हो सकता है, राइट. कैपिटल इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन हो सकता है, दैट इज फाइनेंशियल टर्म्स में हो सकता है कैपिटल फॉर्मेशन. देन सोशल कैपिटल फॉर्मेशन हो सकता है. तो इन्वेस्टमेंट जब आती है तो उससे कैसे कैसे आप क्रिएशन कर सकते हैं. डेफिनेटली आप एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रहे हैं तो वो सारा इस बीच वाले टर्म्स में आ जाएगा. द एब्सोल्यूट कैपिटल फॉर्मेशन, राइट, और द फाइनेंशियल कैपिटल फॉर्मेशन, यहाँ पे वेजेस इंक्रीज हो रही हैं, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो रही है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, कैपिटल असेट्स फॉर्म हो रहे हैं, राइट. ह्यूमन कैपिटल की आप बात करेंगे तो स्किलिंग की आप बात कर सकते हैं, वर्टिकल मोबिलिटी एम्प्लॉइज की इंक्रीज हो रही है, स्किलिंग इंक्रीज हो रही है, हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी इंक्रीज हो रही है. सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की आप बात कर सकते हैं व्हिच इज बीइंग क्रिएटेड बिकॉज ऑफ द इनकमिंग इन्वेस्टमेंट, बिकॉज गवर्नमेंट आल्सो प्लेज द रोल ऑफ फैसिलिटेटर. तो रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रा क्रिएशन, इलेक्ट्रिसिटी, पावर कंजप्शन इन अ कंट्री all gets basically boost, they get a boost because of certain investment in our country. So these are the forms of capital formation. इसमें ज्यादा कुछ था नहीं, आपको बस एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में आपको बस इसको लिखना था, दैट इज इट. आप कितना ऑर्गेनाइज्ड मैनर में इसको एक्सप्रेस कर सकते हो, दैट इज द थिंग. अब अगर आप यहाँ पे फोकस करते हो इसके ऊपर कि इन्वेस्टमेंट कहां से आ रहा है, सो यू आर गोइंग इन अ रॉन्ग डायरेक्शन. अब अगर आप यहाँ पे फोकस करते हो कि सेविंग्स हो रही है देश में, FDI आ रही है, FII, उसने ये पूछा ही नहीं है कि इन्वेस्टमेंट कहां से आया, वो डाउनवर्ड लिंकेजेस की बात कर रहा है कि इन्वेस्टमेंट आ गया, अब कैपिटल फॉर्मेशन पे आप अपने ओपिनियंस एक्सप्रेस करो, राइट. तो आपने नीचे डाउनवर्ड लिंकेजेस पे फोकस करना है, अपवर्ड या अपवर्ड पे नहीं करना है. तो ये भी उसी का पार्ट है कि कैसे आप इन्वेस्टमेंट को बूस्ट दे रहे हो अपने देश में. ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे कल क्वेश्चन आ जाएगा अगर कि गवर्नमेंट ने क्या करा इंडिया में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए. तो हमने काफी सारे रिफॉर्म्स ऑलरेडी देखे हुए हैं. सतत है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम हमने देखी थी, इथेनॉल है, CBG है, फिर हमने गैस बेस्ड इकोनॉमी देखा, उसमें गवर्नमेंट ने कैसे टैरिफ पॉलिसीज को ट्वीक किया है, एक्सप्लोरेशन एक्टिविटीज में मार्केट डिटर्मिनेशन बना दिया है प्राइसेस को, एंड सो ऑन. तो यहाँ पे भी एक ये एग्जांपल है कि कोल सेक्टर में गवर्नमेंट ने क्या किया. फिर DFC की बात कर सकते हो आप, राइट. DFC हमने स्टडी करी थी कि फ्राइट को कैसे हम बूस्ट दे रहे हैं अपने कंट्री में, हाउ वी आर ट्राइंग टू डेवलप सप्लाई चेन्स एंड इंटीग्रेट दोज विद दोज ऑफ द ग्लोबल सप्लाई चेन्स, ग्लोबल वैल्यू नेटवर्क्स. ठीक है, तो ज्यादा यहाँ पे डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस एक पॉइंट है छोटा सा मेंस पर्सपेक्टिव से कि कोल सेक्टर में गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव लिया है. सिंगल विंडो क्लियरेंस पोर्टल, तो एक विंडो के थ्रू अब सारा क्लियरेंस मिलेगा और मॉनिटरिंग भी उसी पोर्टल के थ्रू होगी. अगर मैं बिडर हूं, मैं इन्वेस्टर हूं, तो मेरे को एक ही पोर्टल है, उस पर मैं अप्लाई करूंगा क्लियरेंस के लिए और उस पर मैं मॉनिटर भी कर सकता हूं कि मेरी एप्लीकेशन अभी कहां पर है, कौन से डिपार्टमेंट पर है. ठीक है, ओके. ये सारे पॉइंट्स मैं दोबारा डिस्कस नहीं करूंगा, ये दोनों आर्टिकल्स बहुत अच्छे आर्टिकल्स हैं फ्रॉम द इंटरनेशनल रिलेशंस पर्सपेक्टिव. कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेन कर देता हूं, पर्सपेक्टिव आपको देता हूं, ऑलरेडी डिस्कस हम कर चुके हैं. इफ यू हैव टाइम गो थ्रू दीज आर्टिकल्स, अदरवाइज यू कैन स्किप देम. If you are or if you think that you know very well what India is gonna do in the next 2 years as a term as a non-permanent member of UNSC, तो अगर you are very much confident कि आपको पता है, क्योंकि हम बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं. 2 तो की ऑब्जेक्टिव है इंडिया के, एक क्या है नॉर्म और दूसरा क्या है पीस एंड सिक्योरिटी, जिसमें कॉम्बैटिंग टेररिज्म.
नॉर्म में क्या है, न्यू ओरिएंटेशन टू द रिफॉर्म्ड मल्टीलैटरलिज्म, दैट इज यूएन एंड यूएनएससी रिफॉर्म्स। अब आपको इसको फर्दर एक्सपैंड करना है, ये मेजर ऑब्जेक्टिव है इंडिया के, ठीक है, इसको फर्दर एक्सपैंड करना है। तो हमने एक एडिटोरियल देखा था, उसमें हमने 5 पॉइंट्स देखे थे कि इंडिया क्या करने वाला है। तो यहाँ पे इंडिया क्या करने वाला है, इफेक्टिवनेस इंक्रीज करेगा, रिप्रेजेंटेशन वाइडन करेगा और एक्सपैंड करेगा ऑफ यूएन एंड यूएनएससी बोथ, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद इंडिया अपने ट्रेडिशनल लिंकेजेस को रिवाइटलाइज करेगा, जिससे नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को बूस्ट मिलेगा। चाइना को ब्लॉक करेगा, चाइना के हॉस्टाइल एटीट्यूड को या असर्टिव एटीट्यूड को ब्लॉक करने की कोशिश करेगा, एंड इट विल बेसिकली बिकम वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ। ये मेजर ऑब्जेक्टिव है जो इंडिया, एक मेजर रोल जो इंडिया अज्यूम कर सकता है व्हेन इट अज्यूम्स द नॉन परमानेंट मेंबरशिप एट यूएनएससी। तो ये अगर आपके दिमाग में क्लियर है, इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हो तो फाइन, अदरवाइज मेरे पुराने सेशंस देखना जहां पे मैंने डिटेल में डिस्कस करा है, और ये आर्टिकल को क्विकली रीड करना, ज्यादा डिटेल्स में मत जाना है, ठीक है। ये आर्टिकल अपने आप में और इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये ओवरऑल इंटरनेशनल सिनेरियो आपको एक्सप्लेन करता है इन ब्रीफ कि इंटरनेशनल सिनेरियो कैसा चल रहा है और इंडिया कहां पोजीशन करता है, इंडिया अभी कहां एग्जिस्ट करता है। तो अगर मैं बात करूं यूएस से लेके, तो यूएस में प्रेसिडेंटशिप चेंज हो रही है, सो अकॉर्डिंगली मेनी थिंग्स आर गोना गेट रीप्रायोरिटाइज्ड, मॉडिफाइड। कैसे, अफगानिस्तान को पिक करते हैं, अफगानिस्तान पीस प्रोसेस, इंडिया का रोल वहां पे और इंक्लूसिव हो सकता है, इंडिया को वहां पे मार्जिनलाइज भी किया जा सकता है, टोटली डिपेंडेंट अपॉन द रोल ऑफ यूएस प्रेसिडेंट, हाउ ही प्लेज इट, because China is the country, Pakistan is the country who want India to play a peripheral role in the Afghans internal affairs, whereas Trump was in favor of India and wanted to include India. But Joe Biden, we do not know how he is going to react on the Afghan peace process, especially when in Afghanistan Taliban has surged the violence, when it has increased the violence substantially. Then if we talk about वेस्ट एशिया डिप्लोमेसी, तो वहां पे क्या मेजर एग्रीमेंट्स हुए, क्या मेजर डेवलपमेंट्स हुए, JCPOA, विड्रॉल ऑफ यूएस फ्रॉम द JCPOA, अब्राहम अकॉर्ड्स एंड अल उला डिक्लेरेशन। ये मेजर डेवलपमेंट्स हुए वेस्ट एशिया में, कंप्लीटली ब्लॉक जो है वहां पे वो मूव हुए, and here again the role of India will be determined according to the China's influence and US influence. China is supportive of Iran, इंडिया और ईरान के रिलेशंस बहुत ही वीक हो गए हैं सिंस द विड्रॉल ऑफ यूएस फ्रॉम द JCPOA एंड सिंस इट हैज ब्रॉट इन द कार्डसा लॉ। सारी चीजें लिंक्ड हैं आपस में, आपको बस अपना ब्रेनस्टॉर्मिंग करते रहना है, ठीक है। अब यूएस के जो बिडेन ने बोला है कि मैं जब आऊंगा तो मैं फ्लेक्सिबल अप्रोच के साथ आऊंगा, मैं JCPOA को रिवाइव करूंगा, रीस्टार्ट करूंगा। तो ये जो ब्लॉक है अब्राहम अकॉर्ड, अल उला, ये और स्ट्रॉन्ग होगा, इट विल एक्ट मोर स्ट्रॉन्गली अगेंस्ट ईरान। गेटिंग माय पॉइंट? तो इंडिया को बेनिफिट क्या हुआ? इंडिया को अभी तक पॉलिसी को बैलेंस करना पड़ता था वेस्ट एशिया में, व्हेन इट यूज्ड टू डील विद इजराइल and when it used to deal with the Saudi Arabia bloc. But this is very good for India when these two blocks have converged with each other. अब ये दोनों ब्लॉक्स में हार्मनी अचीव हो गई है, तो इंडिया के लिए बहुत आसान हो गया है इजराइल और सऊदी अरेबिया के साथ कलेक्टिवली एक्ट करना। लेकिन व्हाट अबाउट ईरान? थोड़ा सा समझिए इस पूरे सिनेरियो को। ये दो ब्लॉक्स थे, इजराइल का और सऊदी अरेबिया का, ये दोनों लड़ते थे, इंडिया को बैलेंस करना पड़ता था। बट नाउ दिस both the blocks have come together, so it is good for India. But these together will fight against Iran, so it will become now more difficult to engage with Iran. And if India loses its ground in Iran, then it loses its correct Central Asia policy, because Iran is the only feasible route for India to enter Central Asia. तो सारी चीजें आप थोड़ा सा यहाँ पे समझते चले, पर्सपेक्टिव डेवलप करते चले, एंड अकॉर्डिंगली यू हैव टू एक्सप्रेस द थिंग्स इन द एग्जामिनेशन। चाइना की बात करते हैं।
चाइना यहाँ पे कैसा रोल अज्यूम करेगा? सो चाइना इज गोना बिकम मोर पावरफुल। पॉइंट्स क्या है हमारे पास? ओके, चाइना ने अपने डिफेंस लॉ को अमेंड करा, सीएमसी को और ज्यादा फ्लेक्सिबल कर दिया, हमने अभी देखा था, राइट? चाइना, अब यूएस अगर फ्लेक्सिबल होगा तो चाइना रिजिड हो रहा है, इट इज बिकमिंग मोर असर्टिव। रशिया हैज फॉर्म्ड क्लोजर टाइज विद चाइना एंड इंडिया हैज लॉस्ट इट्स वार्मथ दैट इट यूज्ड टू एंजॉय विद रशिया। फाइन, तो इंडिया यहां पे एक बहुत ही वीक पोजीशन अज्यूम करने वाला है इफ जो बिडेन adopts a flexible approach। बिकॉज यूएस का सपोर्ट अगर गया तो इंडिया ने जो पार्टनर्स बनाए थे वो भी काफी वीक पड़ जाएंगे, स्पेशली रशिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड सो ऑन। देयर इज ओनली वन स्पेशल पार्टनर ऑफ इंडिया, और यू कैन से टू स्पेशल पार्टनर्स ऑफ इंडिया, वन इज फ्रांस एंड सेकेंड इज जापान, जिन पे आप रिलाई कर सकते हो। अदरवाइज अगर आप चाइना को देखो तो इंडियन नेबरहुड में चाइना आ चुका है। नेपाल और श्रीलंका हैव बिकम द टू न्यू linchpins of China in our own neighborhood. The position that we are trying to vacate in the SAARC region is being captured by the China. This is again a loss for us. तो ये सारे डायनामिक्स यहाँ पे थोड़े से एक्सप्लेन करेंगे, राइट? बाकी चीजें तो तभी क्लियर होंगी जब जो बिडेन बेसिकली अज्यूम करते हैं अपनी प्रेसिडेंशियल। किसी को कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, अदरवाइज वी विल कॉल इट अ डे। ये वाला आर्टिकल जरूर पढ़ लेना थोड़ा सा टाइम निकाल के, जितना हाईलाइट किया है बस उतना पढ़ लोगे काफी रहेगा। ये वाला चाहिए तो छोड़ देना, अगर ये आपका क्लियर है, पुराने सेशन अगर अटेंड करे हैं देन इट्स फाइन। बाकी आज का जो मेन आर्टिकल था वो तो लीगल एज ऑफ मैरिज था, उसमें भी कोई डाउट है आपको तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है? उसमें अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है प्लीज, and that understanding you cannot develop without having good understanding of the prohibition of child marriage act and the application of same। तो कोई डाउट नहीं है तो हम कंक्लूड करें फिर आज का सेशन, और यू आर गोइंग थ्रू दी नोट्स। ये तो बस आर्टिकल मत पढ़ना, ये मैंने एक्सक्यूज लिया है इस आर्टिकल से, जस्ट टू डिलीवर यू द कंटेंट व्हिच वाज पेंडिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, दैट इज ऑन द लीगल एज ऑफ मैरिज। ये आर्टिकल में कुछ भी नहीं है मेन खास, ठीक है? इसको मत रीड करना, इट इज इररिलेवेंट, टोटली इररिलेवेंट। Okay, so thank you all for your patient listening. Have a great day ahead.